ایسی کوشش کریو کوئی کار رکھیو لازمی ادا بغیر کیمرے تو اور بغیر تشہیر تو چلا بالیو شاید سانو کل معافی لگ جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز جانا اور معاملے کرنے. لیکن جب کبھی رسول پاک کی خدمت یا ڈیوٹی نہیں ہونا تو پھر کسی معقول بندے کی ڈیوٹی لگا دینا. آپ فرماتے ہیں کہ ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا. آپ تو ڈیوٹی لگا کے تشریف لے گئے، میں نے اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا، میں جاؤں گا. اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس انداز سے اماں کی خدمت کرنی ہے کہ اماں کو حضرت ابو بکر بھول جائیں. اور اماں کا یہ خدمت تو عمر نہیں کی ہے. فرماتے مقررہ وقت پہ میں گیا، دروازہ کھولا، آہستہ دبے لفظوں میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر آئے نہیں. فرماتے ہیں جھاڑو پکڑا، صفائی کی، تازہ پانی بھر کے لایا، سالن پکایا، روٹی بنائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی کو لے کے اماں کے پاس. اماں کو اٹھا کے بٹھایا، ایک نوالا توڑا، سالن میں ڈبویا اور اماں کے ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو. فرماتے نوالے کا ہونٹوں سے لگنا تھا، اماں بھی بول پڑی اور کہتی آج ابو بکر نہیں آئے. کیونکہ مزاج مبارک میں جلال بھی تھا. آپ فرماتے میں نے کہا اماں کو تو نظر آتا ہے، اور اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے. آپ فرماتے میں نے کہا اماں تو جھوٹ بولتی ہے، تجھے نظر آتا ہے. اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. آپ فرماتے میں نے کہا کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ تو لکھا ہے اس نے اپنا منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. اس نے کہا آنے والے پتہ اس طرح چلا کیونکہ میں نوالا چبا ہی نہیں سکتی، دانت کوئی نہیں. جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو وہ پہلے نوالا خود چبا کے نرم کرتے ہیں، اور جب اس کو مزید چبانے کی حاجت نہیں رہتی تو پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں اور میں نوالا نگل جاتی ہوں. پتہ کیسے چلا؟ پتہ ایسے چلا آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابو بکر نہیں آئے. ہے پڑے آتے سی حضرت ہے یہ کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. لیکن حمایت کیا کرنی ہے، ہم تو غریب کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے. بہرحال حضرت 10 منٹ میرے پاس رہ گئے. اسلام تو کہتا ہے کہ حضرت بیگانوں کے منہ میں جا کے نوالے ڈالو، لیکن دکھ کی بات یہ ہے آج تو ہمارے والدین ہمارے نوالوں سے محروم ہیں. او پھر بہ کے ڈیگتے رہتے کھڑے ویلے کو ساڑھے منہ ہے بھی برکی پائے. اور میں علماء بیٹھے ہیں پتر بڑا دھیان رکھنا، کیونکہ لکھا ہے کہ حضرت بڑے بیٹے قیامت والے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ اپنے والدین کے خاتم کیونکہ حضرت جب ہمارے مائی بابوں کو یہ وہ ہارٹ اٹیک آتا ہے نا کہ برین ہیمریج ہوتا ہے تو ہم لے جاتے ہیں ہاسپٹل، تو ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ رپورٹ بنا دیتا ہے اور اس پہ لکھ دیتا ہے کہ بابے کے مرنے کی وجہ حرکت قلب کا رک جانا ہے. وہ یہ تو لکھ دیتا ہے کہ بابے کی حرکت قلب رک گئی، لیکن وہ اس سے آگے نہیں لکھتا کہ بھئی بابے کی حرکت قلب رکی کیوں. بابے کے قلب کے ساتھ اولاد میں کہ یہ اگلی وجہ حضرت ان فرشتوں نے کہ اولاد نے ان دلوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ یہ دل آخر رک گیا. اس دل پہ کتنے طوفان آئے اور ایک دن یہ دل طوفان برداشت نہیں کر سکا. وہ صاحب جاپان والے 125 پہ جا رہے ہیں، انگلینڈ والے 100 پہ جا رہے ہیں، ساڑھے تھے حضرت 55-60 تو بعد پوگ جاندے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل کے ساتھ ہوتی بڑی بری ہے. صحیح بات ہے، دل کے ساتھ بڑی بری ہوتی ہے. میں مثال کے طور پہ آج تو خیر کل جمعہ ہے، میں نے سیالکوٹ واپس جانا ہے. یہ پیچھے 3 دن کا ہمارا دورہ تھا KPK کا، تو میں دورے سے واپس آیا تو میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم، تو جب میں جاتا ہوں نا تو میں اگر وہ جاگ رہا ہے گھر ہے تو پوچھتا ہوں کہ بھائی ابراہیم 3 دن کے لیے جا رہا ہوں کیا لے کے آؤں؟ تو اس نے ہر بار کی طرح یہی کہنا ہوتا ہے بابا گاڑی لے کے آؤں. تو یہ مجھے بات یاد ہے تو آپ کو سنا رہا ہوں. لیکن ہونا کیا ہے کہ وقت بدلنا ہے. اگر میرے اللہ نے چاہا میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میں چارپائی پہ آ جاؤں گا، پھر ابراہیم جانا شروع کر دے گا.
और एक दिन इब्राहिम जाने की तैयारी में होगा, उसकी बीवी उसका बैग, उसकी किताबें, उसके कपड़े वगैरह तैयार कर रही होगी, बार बार उससे पूछेगी कितने कपड़े रखने हैं, पगें कितनी रखनी है, सॉक्स के जोड़े कितने रखने हैं। और मैं मंजी ते बैठा कुड़दा होवांगा अंदरों कि इब्राहिम मैनू क्यों नहीं पुछदा पिया, वो 3 दिन नहीं चलना वा की लैके आ। हजरत वो मार छड़दा है, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚ ਕੁੜ ਕੁੜ ਕੇ 65 ਦੀਆਂ 70 ਤੇ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, कुड़न मार देती है। माँ बाप को सब याद होता है ना कि हमने अपने वक्त में औलाद के क्या क्या लाड नहीं उठाए, जब उनकी बारी आती है तो उनके लाड उठाता। तो साहब डॉक्टर ने सिर्फ ये लिख देना है कि दिल रुक गया, डॉक्टर ये नहीं जान सकेगा कि दिल रुका क्यों, इस दिल के साथ हुआ क्या क्या है, औलाद ने इस दिल के साथ क्या क्या किया। मैं, मेरी बच्चों की अम्मी है, अगर हम कभी बाजार जाएं, ज़ाहिर लोग पहचान लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे फिर ज़ाहिर फैमिली साथ है, अकेला हूँ तो चलो और बात है, गुस्सा आता है फिर तो ज़ाहिर आप किसी पे तो निकाल सकते नहीं कि भाई 7 बच्चों की अम्मी है, तेरी वड्डी को तस्वीर फंसा देती है, तो बच्चे नहीं देखते, फिर ज़ाहिर है चुप कर जाता हूँ, फिर वो उस पर निकलता है, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आवाज़ में सख्ती आती जाती है और मेरी होता है कि चल अब निकल बस। लेकिन हजरत मैं अक्सर सोचता हूँ कि क्या है माँ का प्यार अपने बच्चों से। मैं जितना मर्जी गुस्सा कर लूँ उसने अपनी ही करनी है। उसने जितनी देर तक इब्राहिम के साथ कपड़े लगा के कलर चेक नहीं करना, उसने दुकान से निकलना, उसने जब चेक कर लेना है ये कलर इब्राहिम को ठीक लग रहा है, उसको तसल्ली हो जानी है तो उसने फिर दुकान से। लेकिन होना क्या है, जब उसकी बारी आनी है तो उससे के साथ किसी ने कलर लगा के चेक करना, तेरे ख्याल में भूल जाना कि मेरी वजह नाल बंदे को बिस्तरी नहीं सा रुक जानी सा, सख्ती बर्दाश्त करनी सा। लेकिन जब मेरी बारी आई, मेरे साथ किसी ने भी कलर लगा के नहीं देखा कि ये कलर अम्मी को अच्छा लग रहा है कि नहीं। जूती लेने जाए जितना मर्जी कहूं, लेकिन उसने इब्राहिम के पैरों में जूती पहना के चेक करनी है, चला के देखना है। लेकिन दो दी बारी आनी है तो वो चाह किसी ने करने, फिर क्या होगा, फिर एक दिन हरकत कल्ब बंद हो जाएगी, इस दिल के साथ इतना बुरा होगा। इसलिए पुत्र ध्यान रखियो, जिस जिस दे कोल है इन्हें दा लाड करियो, इन्हें दा चाह करियो। फरमाया ये जन्नत भी है, ये जहन्नम, हमने इनको बड़ा लाइट ले रखा है, ये लाइट नहीं है। हुजूर फरमा रहे हैं जन्नत भी है और ये आपने बड़ा लाइट ले लिया है इनको पुत्र, ये इतने लाइट नहीं है, ये जन्नत भी है, ये जहन्नम भी है। अगर इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करोगे, भावे तेरे माँ प्यो ने तेन चुक जन्नम से सुटन गया, और अगर इनके साथ अच्छा सलूक करोगे तो ये तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। हमने इनको बड़ा लाइट ले लिया। मैं पीर वाला हूं पुत्र, मेरे बुजुर्गों ने बड़ी शफकतें फरमाई, फरमाते हैं, लेकिन पुत्र सिर्फ को 10 साल मेरा रब मुझे मेरी माँ के साथ और दे देता तो पता नहीं फिर रूहानियत के लिहाज से डॉक्टर सुलेमान कहाँ से कहाँ होता। मैंने बड़ा कुछ लिया अपनी माँ से, मुझे इसमें कोई आर नहीं है। सारे अक्सर पूछते हैं कि हजरत को गुफ्तगू भी आपकी कोई इतनी खास नहीं है, थू पड़ी तो थू पड़ी तो थू पड़ी, लेकिन दुनिया दीवानी। तो मैं कहता हूँ मेरे साथ मेरे वालिदैन की दुआएं। मैंने ये स्पेशल जो जवान बच्चे बैठे हैं, मैंने अपनी माँ को कपड़े धो के दिए हैं, मैंने अपनी माँ को बर्तन धो के दिए। मेरी वालदा साहबा को हरनियों का इशू था, मैंने मदरसे से वापस आना, वालदा साहबा लेटी हैं चारपाई पे, और घर सारे का सारा उसी तरह पड़ा है। मैं समझ तो जाता था, फिर भी पूछना मुझे की है, वो पुत्र आज बड़ी दर्द हो रही है, कम नहीं हुए, तो मैं क्या चलो लेट नहीं आ तो दर्द कट दी है, गोली खा दी है, तो मैं बारी चुक लें और मैं बारी रह पड़ा। अम्मी ने कहा सुलेमान तो हाफिज़ कुरान है, जो उन्होंने गुनहगार करना है। मैंने अर्ज़ करनी हाफिज़ कुरान ते लोका ले हैं, ताड़ा ते मैं नौकर। बारी फेर ली, फिर मैं हज़रत पांडिया नु डाय पड़ा। मैंने अपनी माँ को कपड़े धो के दिए, मैंने अपनी अम्मी को आटा गूंद के दिया। मेरे मोहल्ले की औरतें मेरी अम्मी को कहा करती थी, बुशरा तेरे घर तो कुड़ी हुई, दाढ़ी वाली कुड़ी, लेकिन मैंने कभी टेंशन नहीं थी। फिर मेरे हजरत साहब मुझे फरमाया करते हैं, अब फरमाते थे मौलवी सुलेमान, कोई सोना बेचन आए भावें विके ना विके, तू फक भी बेचन जाएगा तेरी फक भी विकेगी। मैंने अर्ज किया था, मैंने अर्ज की हुजूर ओ क्यों? फरमान लगे तेरे पीछे तेरे माँ ते तेरे प्यो दियां दुआवां। उसी तरह पुत्र अल्लाह ने तौफीक दी,
मैंने अपने बाबे से भी बड़ी दुआएं ली। जितनी देर तक अबू जी हयात थे कभी कोई टेंशन नहीं ली है, कोई काम फंसया, कोई दिल में ख्वाहिश जागी ये होना चाहिए। मेरे वालिद साहब को जलेबियाँ बड़ी पसंद थी। सियालकोट की एक बड़ी ख़ास दुकान है, उसकी जलेबी बड़ी पसंद करते। मैंने जलेबियाँ लेनी, मैंने चले जाना अपने बाबे के पास, जाके मैंने जलेबी रखनी, क्योंकि गुज्जर था और कोड़ा गुज्जर था। कोई किया कदी गुस्सा नहीं करना पुत्र इन्हां दी की है, सानू पुछो जिन्हां दे हुण कंन तरसदे ने की करते कदी पुत्र जिन्हें असी यावियां मारियां ने तो करदे कख। आपको पता है जिस दिन आपने पहले दिन पानी कहा था और आपसे पानी भी नहीं कहा गया था, आपने कहा था मानी, भाई आपकी माँ ने तो मानी पे भी खुश होकर आपका मुंह चूम लिया था। तो उसने अपने पूरे पेके में फोन कर करके बताया था कि आज सुलेमान ने पहली बार मानी मंगे हैं जी। वो तो हमारी यावियों पे भी खुश हो, मुझसे रोटी नहीं कहा जाता था अगर, लेकिन मुझ पे भी खुश हुआ कर। और आज हमें इनकी बातों के गुस्से लगते हैं। कभी गुस्सा न करिए पुत्र, सानू पुछो जने दे नहीं है तरस देने कान कि तू आवाजान कान न क्यों। जहां जाता हूँ इफ्तिखार भाई तो वैसे ही एक्स्ट्रा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जहां भी जाऊं जी भावें कोई मन्ने माने ना मने दी मजबूरी होंदी है, उन्हें मेरे नाल सारा कुछ लाड़ा ही लाड़ा, हजरत तलावा डॉक्टर ये वो। लेकिन पुत्र वो दुनिया में एक ही था जो मुझे इस तरह बुलाया करता था, ओए सुलेमान, वो एक ही था, लेकिन वो चला गया। तो मैं कोई पुत्र अल्फाजी नहीं कर रहा, अपने दिल का दर्द आपके सामने रख रहा हूँ। तरसते हैं कान इस आवाज को कि तू आवाज आए, ओए सुलेमान। मैंने जलेबी जाके रखनी किया, मैं बुझी होता हूँ जलेबियां बड़ी पसंद थे, लेके आए आ लैन हर चौथे दिन मिठा मरदा क्यों नहीं खा के चुप। फिर थोड़ी देर बाद चल दे जो ले ही आए, मैं हजरत खोल के एक पेश करनी, एक खानी स्वाद नहीं है दे एक और, हजरत साहब दूसरी खानी तो आंखों में आंसू आ जाने। फिर रो के दुआ करनी, या अल्लाह मैनू खुश करदा है तो इन्हू खुश रखी, मेरा मुंह मिठा करदा है तो एदा मुंह मिठा रखी। साहब माशाल्लाह सादात तशरीफ फरमाए, राजल सईदा में वेखो दुआवां लगो, लेकिन पुत्र याद रखियो जड़ा घरों भुखा बाहरों भी जे पुत्र तेरे नाल तेरे माँ प्यो दियां दुआवां ने फिर हर थापी तेन काम दे। ते जे पुत्र माँ प्यो दियां दुआवां नहीं तो बड़ियां थापियां मिस कोई नहीं काम आनी है जदों भी निकली ए दुआवां। और मैं अक्सर क्या करता हूँ पुत्र, हमें तो अंदाजा ही नहीं है ये है क्या। मैंने क्योंकि मैं वालिदैन की शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ और फिर अबू स्कूल ही नहीं दाखिल करवाते थे, हमेशा मार दिया ने, लाडली औलाद थी, कल्ला कल्ला पुत्र सा। बड़ा कह के मामू ने खाला ने मुझे 6 या 7 साल की उम्र में स्कूल दाखिल कर लिया, इसलिए हर लिहाज से लेट था। मैट्रिक भी लेट किया मैंने, फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो अल्लाह ने सोच बदल दी, कॉलेज छोड़ा और मैं हिफ्ज़ और दरस निज़ामी के लिए पढ़ा। पेंडा क्योंकि लंबा था इसलिए अबू जी से इजाज़त मांगी, लेकिन उन्होंने इजाज़त दे दी। फरमान लगे बस दुआ करें यार सा वफा करें तेरे मुकम्मल मौलवी बनने तक।